Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے حضرت، اور صرف نام ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ کام بھی بڑا ہے. نام تو بھی بڑے بڑے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ صرف نام نہیں تھے، یہ لوگ کام بھی تھے. انہوں نے صرف نام نہاد پیری مریدی نہیں کی، بلکہ انہوں نے پیری مریدی کا حق ادا کیا. حضرت ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ حضرت کا وصال ہو گیا تو آپ کے کسی مرید نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تخت پہ بیٹھے ہیں، سامنے جنتی میوے پڑے ہوئے ہیں، حضرت نے بڑی خوبصورت پوشاک پہن رکھی ہے، چہرہ بڑا چمک رہا ہے. تو مرید خواب ہی میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضرت کیسی مزے کی زندگی ہے، تخت بچھا ہے، جنتی لباس ہے، سامنے جنتی کھانے پڑے ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے. تو کیسی مزے کی زندگی ہے. تو قربان جاؤں، لکھا ہے آگے سے حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کی، اور اس نے اپنے فضل سے مجھے جنتی نعمتیں بھی عطا کی. لیکن اگر تو سچ پوچھتا ہے نا تو مزہ اس زندگی میں نہیں، مزہ اسی زندگی میں تھا. اس مرید نے عرض کی، حضرت کہاں وہ دنیا کی زندگی اور کہاں جنت کی نعمتیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں، اس میں مزہ تھا. آپ نے فرمایا تو میری بات کو سمجھا نہیں. میں یہ تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نعمتیں ہیں، لیکن جو مزہ دنیا میں صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرم بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، رضائی چھوڑ کے، مصلی پہ لا کے حضور کھڑے ہو کے رونے میں تھا، وہ اس میں نہیں ہے. جو مزہ اس دنیا میں سجدوں میں تھا وہ اب یہاں نہیں ہے. اصل مزہ تو وہی مزہ تھا، اصل مزہ حضرت یہی مزہ. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے اس مزے سے محروم ہیں. دیکھیں نا، اور اسباب بھی ہے. محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا اہل جنت کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا. اللہ ایسی ایسی نعمتیں جنت میں دے گا بندے کو کہ بندے کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا حضرت جی، یہاں اگر بالفرض کچھ بھی کرنا پڑے تو تگ و دو تو ہے نا. گھر میں آپ کو سمپل سا بھی کھانا بنائیں تو اس کے لیے بھی تگ و دو ہے. آپ ٹینڈے ہی بنا لیں، بازار لینے جانا پڑے گا اتنی گرمی میں، اس کو دھونا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو پکانا پڑے گا. پتہ نہیں پکیں گے بھی مزے کے کہ نہیں. لیکن جنت میں کیا ہوگا، آپ کچھ سوچیں گے اور نعمت آپ کے سامنے پڑی ہوگی. کوئی تگ و دو ہی نہیں ہے، کوئی تگ و دو نہیں ہے. اب کھا لیا، اب بقیہ کا کیا کروں؟ بقیہ خود بخود دی. اب جو کھا چکے ہیں اس کا کیا کریں؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں بولو براز، پیشاب اور پخانہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ جنتی بندے کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. نعمتیں ہیں نا، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نعمتیں ہیں، لیکن اصل مزہ سجدوں میں تھا. اصل مزہ سجدوں میں تھا، اصل مزہ ظہر کی نماز میں تھا، اصل مزہ عصر کی نماز میں تھا، اصل مزہ مغرب کے سجدوں میں تھا، اصل مزہ عشاء کے سجدوں میں تھا. ہاں حضرت جی، یہ ہم بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. محبوب نے فرمایا اللہ اتنا عطا کرے گا جنت میں، کسی کو کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، دکھ تک نہیں ہوگا. لیکن محبوب فرماتے ہیں اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا تو ان گھڑیوں پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہوں گی. تو پھر جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی پھر ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ تصور کریں. محبوب فرماتے ہیں بندہ نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن
कोई घड़ी जिक्र के बगैर गुजर गई, गफलत तारी हो गई, गुजर गई बगैर जिक्र के। महबूब फरमाते अहले जन्नत को उन घड़ियों पे भी दुख होगा, काश मैंने इस घड़ी में भी अल्लाह का जिक्र किया होता तो अल्लाह मुझे और अता फरमा देता। तो बदरे जो अहबाब नमाज ही नहीं पढ़ रहे, फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उनके दुख का क्या आलम होगा। बल्कि दुख तो छोड़ो, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, बल्कि कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब आपस में बातें हो रही हैं, फ़ी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, आले जन्नत आले जहन्नम से पूछ रहे हैं मा सलकाकुम फ़ी सकर, भाई तुम आग में क्यों आ गए? जो नमाज में नहीं पढ़ रहा, जो नमाज नहीं पढ़ रहा, बड़े अंग्रेजी नमाजी ऐसे, मसलन मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई किरदार अच्छा नहीं है, बेतहाशा लोगों ने ये बहाना तराश रखा, नहीं भाई एंज ना लो मैं बेनमाजी चंगा। भाई ये क्या बात हो गई? ये नमाज छोड़ने का कौन सा आपने उज़्र बना लिया? अगर मैं नमाज पढ़ के कुछ अच्छा नहीं कर रहा तो उसका जवाब मैंने देना है, आपको मेरे ना अच्छा करने की वजह से नमाज कैसे माफ हो गई? और बेतहाशा लोगों ने ये जवाब बना रखा है, नहीं भाई जे नमाजी हो के भी एंजी तो मैं देना बेनमाजी चंगा। भाई ये क्या जवाब हुआ नमाज छोड़ने का? अगर वो नमाज पढ़ के कुछ अच्छा नहीं कर रहा, उसके कोलो फेल में तजाद है, तो उसका जवाब उसने देना है। आपको इसकी वजह से नमाज की छुट्टी किसने दे दी? नमाज तो फर्ज ऐन है, सफर में नहीं माफ, बीमारी में नहीं माफ, अगर आप होश में हैं, आपके होशोबाज कायम है, तो ये कौन सा बहाना हो गया? भाई अगर सुलेमान अब नमाज पढ़ के कुछ अच्छा नहीं कर रहा, कुछ उसमें ऐब है, कुछ उसमें बुराइयां हैं, तो ये आपको किसने कह दिया कि आप ये कह के नमाज छोड़ दो? नहीं जी, जे इंज दा ही नमाजी होना तो मैं देना बेनमाज चंगा। भाई होना तो ये चाहिए था, तू ये कहता कि अच्छा ये नमाज पढ़ के ठीक नहीं, मैं ठीक होके बताऊंगा। ये कैसा जवाब? आज आपको इस मुआशरे में लातादाद लोग इस तरह के मिलेंगे जिन्होंने ये जवाब बना, नहीं भाई इंज दे नमाजी नो सी बेनमाजी चंगे। भाई ये कौन सा जवाब? नमाज की तो रुखसत है नहीं। अगर कोई नमाज पढ़ के अच्छा नहीं कर रहा तो ये जवाब उसने देना है, आपने या मैंने नहीं देना। कल मैं जाके ये अल्लाह के सामने नहीं कह सकूंगा या अल्लाह इसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्ज है नमाज, फर्ज है, फर्ज ऐन है नमाज, फर्ज। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, फी जन्नती तसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर। मफहूम है, भाई तुम क्यों जहन्नम में आ गए, तुम जन्नत में क्यों नहीं आए? देखो तो इस जन्नत में कैसी कैसी नेमतें हैं, शराबन तुहूरा है, जी शहद है, ठीक है जी, अनवा इक़साम के खाने हैं, खूबसूरती है, हमेशा की जवानी है, इतनी खिदमत गुजार जो है ना वो अल्लाह पाक ने हुरू मकसूरातुन फिल ख़याम, क्या क्या मेरे अल्लाह ने अता। भाई तुम जन्नत में क्यों नहीं आए? तुम आग में क्यों जल रहे? तुम आग में। और महबूब फरमाते हैं अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। हजरत पनाह मांगा करो, पनाह मांगा करो। भाई हम किस खेत की मूली हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह वो मासूम अनिल खता थे, लेकिन खौफ का आलम देखो, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह खुद अपने महबूब को फरमा रहे, महबूब इस तरह मांगे मुझसे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। ये दुआ अल्लाह खुद महबूब को कह रहे हैं, महबूब आप इस तरह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। और 2022 वाले देखो मौजे मारते फिर रहे हैं, खौफ ही नहीं किसी को। वहां जब कुरान नाजिल हो रहा है, जब अबू बकर हैं, भाई वही थे ना मुखातिब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वही थे ना मुखातिब। उधर अल्लाह कह रहे हैं कहो मुझे वक़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबन नार। और 2022 वाले देखो कैसे चिल घूम रहे हैं, टेंशन ही कोई नहीं इनको। जहां बाहर निकले तो गंदगी है, माहौल गंदा हो चुका है हजरत, हर 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 किनारे पे गुनाह मुंह खोले खड़ा है हजरत। हमें तो चाहिए हर वक्त अल्लाह से माफी मांगे हजरत। माहौल में इस कदर ज्यादा गंदगी आ चुकी है हजरत। अगर आप कहें ना कि जी मैं शाहबा चौक से लेकर आलम चौक तक गया और मैं बच गया, तो फिर मेरी समझ से बाहर है, आप कैसे बच गए? अब आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सामने रक्शे पे बैठे क्या कैफियत होती है, बाइक पे बैठे जो हमारी बेटियां जा रही होती हैं उनकी क्या कैफियत होती है। आंखें बंद करके तो चलाने से रहे। अगर कोई बंदा कहे जी, लेकिन क्या है 2022 वाले चिल खड़े हैं, वहां जिन्होंने बदर लड़ी, जिन्होंने ओहद लड़ी, जिन्होंने मक्का छोड़ा, मदीना आ गए, सब कुछ छोड़ आए,
इतनी इतनी सोबतें बर्दाश्त की, कोयलों पे लटा के जला दिया गया जिनकी पुश्तों को, उनको भी अल्लाह क्या कह रहे हैं, इस तरह कहो वकीना अज़ाबन नार, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना हज़रत, लेकिन उनको भी कह जा रहा है वकीना अज़ाबन नार। लेकिन 2022 वाले साल च एक महफिल मिलाद करा के भगड़े पाते फिरन डे हैं, वहां बदर, वहां ओहद, वहां हुनैन, वहां तबूक, वहां पेट पे पत्थर, वहां हिजरतें, क्या कहा जा रहा है, वकीना अज़ाबन नार। और 2022 वाले पल्ले का नहीं, साल च एक महफल, वो भी सुलेमान ने पहले 40,000 अकाउंट च मंगा लिया, जड़ा महफल पढ़ाना आंडे नहीं बेटा। पूछा मां सलकाकुम फी सकर, तुम जन्नत में क्यों नहीं आए? तुम भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले थे। भाई मैं एक दिन ना, वो मैंने इतनी बात खुल के बयान नहीं की, बंदा आके और नहीं रहता काफरा वाली, मैं कहा अल्लाह के बंदे काफिर पे नमाज का फर्ज हो गई। मैंने जरा बात इतनी वाज़ेह नहीं ना की, बंदा आके मुझे कहता है हज़रत साहब काफरा वाली आयतां ते ना साडे ते लाओ। मैं अल्लाह के बंदे काफिर पे नमाज फर्ज है? नमाज तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले पे फर्ज है, ये काफिर वाली आयत कैसे बन गई? अल्लाह कहते जो जन्नत वाले या जहन्नम वालों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, क्यों जल रहे हो आग में? और महबूब फरमाते हैं वो संगल जो अहले जहन्नम को डाले जाएंगे, महबूब फरमाते हैं अगर उसकी एक कड़ी उतार के, जहन्नम के संगल की एक कड़ी उतार के जमीन पे रख दी जाए तो जमीन उसकी गर्मी की वजह से पिघल जाए सारी की सारी। अगर उसकी एक संगली, एक कड़ी उतार के सिर्फ जमीन पे रख दी जाए तो महबूब फरमाते हैं उसकी गर्मी से ये सारी जमीन पिघल जाएगी। जन्नत वाले पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम हमारे साथ जन्नत में क्यों नहीं आए? तुम भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते थे ना, क्यों नहीं आए? तो फिर कुरान कहता है जो जहन्नम वाले हैं वो जन्नत वालों को जहन्नम में आने की सबसे जो पहली वजह बताएंगे, वो क्या कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हज़रत जी कोई छुट्टी नहीं नमाज, कोई छुट्टी नहीं नमाज, बल्कि मजे ले ले के सजदे करो। हजरत वक़्त जा रहा है, मजे ले ले के सजदे करो, ये मौका हाथ में नहीं आएगा हजरत।